प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर बात करेंगे। चैप्टर का टाइटल रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स, संसाधन और उसके प्रकार। संसाधन किसे कहेंगे रिसोर्सेज, और यह कितने प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले आइए रिसोर्सेज की बात करें। व्हाट आर रिसोर्सेज? If scientifically we are going to express about resources, those which can be used to satisfy human needs provided by the nature, it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Means all those things which are used to satisfy human needs provided by the nature without any cost. Nature doesn't charge anything in respect of these materials, and human can be used these resources after adding their technical skills, knowledge, and people are able to buy them. Means this is economically feasible. अगर इतनी सारी बात ना करी जाए तो बहुत छोटी सी एक सिंगल सेंटेंस में कह सकते हैं कि एनीथिंग बाय विच ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड। अर्थ में प्रकृति में अवेलेबल वह कोई भी चीज जिससे इंसान की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, वो रिसोर्सेज कहलाएंगे। अगर ये रिसोर्सेज हैं तो आइए इनके टाइप्स के बारे में बात करें। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of status of development. उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर रिसोर्सेज कितने प्रकार के हुए। तो चलिए पहली बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे पास 2 तरह के रिसोर्स हैं। पहली चीज बायोटिक रिसोर्स। उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को 2 हिस्सों में बांटा गया, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। शॉर्टली जैविक और अजैविक। जैविक मीन्स, biotic means all those resources which have their life or the living things. प्रकृति में उपलब्ध वह सभी साधन जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन है, रिसोर्सेज या संसाधन कहलाए। पहली चीज एग्जाम्पल अगर यूज किया जाए तो प्रकृति में जीवन जिस भी संसाधन पर है, तो पहला आप यूज कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स। सबसे सुंदर और सुयोग्य एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, मानव, और एनिमल बीइंग्स, ये जैविक। हालांकि ट्रीज, प्लांट्स, they are also living things, but if we are comparing animals and human and animal, one side and other side these trees, forest, plants, the growth rate is very slow in forest products or forests. So slightly these are biotic resource. The other side, a biotic resource, or the resources which have not their life. Shortly, so
we can use the other word of this abiotic resource, ajaivic, means man-made resource. हम इसको मानव निर्मित रिसोर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज जिसमें जीवन नहीं है वो मानव निर्मित है, क्योंकि ईश्वर ने जिसको बनाया उसमें जीवन दिया और मानव ने जिसे बनाया उसमें जीवन नहीं है। इसलिए जो भी प्रकृति में साधन मानव के द्वारा निर्मित हैं वो अजैविक हैं। इसलिए बिल्डिंग्स, बड़ी भवनें, फर्नीचर्स, these are man-made resource or the resource which have not their life. Next is on the basis of exhaustibility, how much they are utilized and how they can be used. So, on the basis of exhaustibility, there are two types of resources. First, renewable resource and other is non-renewable resource. So, the resource which can be renewed or the resource which can be reused, they are renewable resource. They can be recycled also. And non-renewable resource, the resource which cannot be reused. If you are using once, in second time you cannot. It is non-renewable resource. So, solar energy, wind energy, water energy or paper, these are some materials, some sources which can be reused. Solar energy is used a number of times. By using solar plants, solar cells, you are not expending much. After establishing once, you will use and use alternately, but only once you have to be invested. So, these are renewable resource, like as water, means water, one for drinking, irrigation, and other is power generation. While generating powers, you are constructing dams, and after constructing this dam, you can use this water in more than one purposes. Means one time you are consuming it for generating electricity, but after generating electricity, the remains you can use, like as for irrigation, fisheries, it means reuse. Second one, non-renewable resources, the resource which cannot be reused again. If you are using once, that will be sufficient. After that, you have to expend or spend something for using it again, like as petrol, like as diesel. After filling in your car, the fuel is being consumed. After consuming one time, you have to be refilled it. Otherwise, until or unless you will not refill it, that will not able to reuse. इसलिए the resources जिसको आप दोबारा से उपयोग में नहीं कर सकते हैं, such as आपने गाड़ी में पेट्रोल भराया, तो पेट्रोल एक बार भरने के बाद आपका वो एग्जॉस्ट हो गया, यूज हो गया, अब आप उसको दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा एग्जॉस्टेबिलिटी आई. नाउ द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर. मीन्स यदि मालिकाना हक के आधार पर इस रिसोर्सेज को बांटा जाए तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? देयर आर 4 types of resources on the basis of ownership. First is individual resource, the resources managed or
controlled, owned by private individuals or a group of individuals. वो रिसोर्स जो किसी एक व्यक्ति और समुदाय के द्वारा मैनेज किए जाएं, that is individual resource, means individual property. It is individual resource. Next is community resource. The resource managed or controlled by a community. एक समुदाय द्वारा जो चलाया जा रहा है, जो साधनों का यूटिलाइजेशन होगा, वो कम्युनिटी रिसोर्सेज होंगे, सच एज पब्लिक पार्क. हमारी लोकेलिटी पर सरकारी पार्क हैं, हमारी लोकेलिटी पर मंदिर कंपाउंड है, हमारी लोकेलिटी पर गुरुद्वारा कंपाउंड है, हमारी लोकेलिटी पर स्कूल्स हैं. ये जो सब चीज़ें हैं, ये हमारी कम्युनिटी रिसोर्स है. इसमें हम सभी लोगों का बराबर का हक है. थर्ड इज नेशनल रिसोर्स. वो साधन, वो संसाधन जिस पर एक राष्ट्र का हक होगा, राष्ट्र का अधिकार होगा, और द रिसोर्सेज मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय अ कंट्री. जो राज्य की संपत्ति है, जैसे एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज और हॉस्पिटल्स, government enterprises, they are national resource. And the next it is international resource, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन. वो सभी संसाधन जो दो राष्ट्रों के बीच आते हों, जिस तरह से लैंड है और वाटर बॉडीज हैं, दो राष्ट्रों के बीच की हैं. Approximately 200 किलोमीटर्स. एक राष्ट्र के बाद लगभग आप इतना चले जाइए तो दोनों राष्ट्रों के बीच की जो एक कॉमन बाउंड्री है, जिसको दोनों राष्ट्र यूटिलाइज कर सकते हैं, इट इज इंटरनेशनल रिसोर्स. इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर रिसोर्सेज चार तरह के हैं. पहली चीज पोटेंशियल रिसोर्स. साइंटिफिकली पोटेंशियल मीन्स द एनर्जी which can be used. It is potential power. How much power it has been used in science, that is potential energy. तो यहाँ पर हम इसकी उपयोगिता के आधार पर, इसकी शक्ति के आधार पर बात करें कि वह संसाधन जिनको बहुत लंबे समय तक हमने यूटिलाइज्ड नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है. अगर हम इसको थोड़ा सा एक लिटरली एग्जाम्पल के रूप में यूज करें कि ऐसे साधन जो बहुत लंबे समय तक यूज नहीं हुए हैं. एवरी स्टूडेंट इन क्लास हैज his or her different eligibilities, different abilities, but we do not know how their abilities can be utilized. So, after a long time, when we do not use it, so the power or the capability might be misused. It is potential energy. Second is developed energy. The resources have their capabilities for utilization, different capabilities. And when we are involving our technical skills and converting these potential energy into useful energy, it is called developed resources. Go through the example in Ramayana. Hanumana
and Jamwanta, a group of monkeys, went to find out goddess Sita or Sita Mata. After reaching the place near Rameshwaram, Jamwanta asked to other group man, who will go to find out Sita after crossing the big ocean? They were planning कि who will go, how will go. And other side, Hanumana was busy in his praying, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. हनुमान और जामवंत सीता माता की खोज में समुद्र किनारे पहुंचे हैं दक्षिण, और आपस में जामवंत अपने ग्रुप के साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि इतने बड़े समुद्र को पार करके कौन सीता माँ के पास सीता माँ की खोज करने जाएगा और कैसे जाएगा। दूसरी तरफ हनुमान, जो दूसरे ग्रुप मैन से दूर अकेले शांत में भगवान श्री राम का जाप करने पर लगे हुए हैं। तो यहां पर जामवंत यूज्ड टू फाइंड आउट द पावर ऑफ लॉर्ड हनुमाना। यहां पर आप हनुमान को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं, और जामवंत ने हनुमान के अंदर छिपी हुई टैलेंट को यूज करा। तो जो हनुमान का टैलेंट यूज किया गया, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द पावर ऑफ लॉर्ड हनुमाना, हनुमान वॉज कन्वर्टेड इनटू डेवलप्ड रिसोर्स। हमने जामवंत जी ने हनुमान के अंदर की क्वालिटी ढूंढी और उस क्वालिटी का यूज किया और सीता माँ की खोज लगाई। तो ये चीज यदि हम यहां पर को हनुमान की पावर यूज करें तो दैट इज पोटेंशियल पावर, एंड विच वॉज अनयूटिलाइज्ड आफ्टरवर्ड बाय जामवंत जी, लॉर्ड जामवंत। we find out what qualities, what power Lord हनुमाना had. इसलिए यहां पर जब हनुमान की पावर को यूज किया गया है तो इसको डेवलप्ड रिसोर्स कहा गया। इसी तरह कोल है, अर्थ में बहुत लंबे समय तक दबे बैठे हैं और इनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो कोयले का जो उपयोगिता है, कोयले की जो यूटिलाइजेशन है फॉर रनिंग मशीन्स, फॉर जनरेटिंग एनर्जी, लेकिन इसका यूज नहीं हुआ, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हुआ। और जब कोयले का यूज हो गया कि कोयले से एनर्जी भी बना सकते हैं, कोयले से हम फ्यूल भी बना सकते हैं, तो यहां पर कोल अब डेवलप्ड रिसोर्स आ गया। फिर थर्ड इज रिजर्व। रिजर्व मीन्स स्टॉक। रिजर्व एंड स्टॉक बोथ आर सिमिलर समवेयर, slightly different. So what is difference between them? So reserve are the subsets of stock which can be put into the use. आने वाले समय में हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे by involving टेक्नोलॉजी। अपनी तकनीक यूज करके ये रिजर्व होगा और स्टॉक to satisfy human needs. But human
डू नॉट हैव द नॉलेज टू यूज। रिजर्व तो हमने अपना फ्यूचर नीड के लिए सेफ रख लिया बाय कन्वर्टिंग डिफरेंट वेज, लेकिन स्टॉक रखा तो है, आप उसको कैसे यूज करोगे इसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद जो अगली चीज आती है, रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन अर्थ in different types which we have discussed till now. But when we are using these resources, there are some problems caused by the over exploitation, over utilization of these resources. What are the problems caused or created by over utilizations? हम लोग प्रकृति पर साधन उपलब्ध हैं, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, मानव निर्मित हो या प्रकृति निर्मित हो, हम इन संसाधनों का यूज करते हैं, लेकिन इससे से कुछ परेशानियां भी सामने आती हैं। वो परेशानियां क्या हैं? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीडी ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। जो साधन है, संसाधन है, वो इंसान की जो लालच है, इंसान का लालची स्वभाव है, उसको पूरा करने के लिए यूज किया जाता है, और हम यहाँ पर इसे यूज नहीं कहेंगे, मिसयूज कहेंगे, क्योंकि मानव की इच्छा, मानव की जो लालसा है, जो लालच है, यह कभी पूरा नहीं हुआ। आज इस चीज़ की डिमांड है, आज मुझे इस चीज़ की मांग है, और कल जब ये मांग मेरी पूरी हो जाती है तो फिर एक नई लालसा तैयार हो जाती है। जब वो नई लालसा तैयार हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसके बाद फिर से एक नई लालसा, नई इच्छा जन्म लेती है, और इस इच्छा को पूरी करने के लिए मानव हमेशा जो संसाधन उपलब्ध है प्रकृति पर, इनका मिसयूज करता है। और दूसरी चीज, accumulation of resources in few hands which helps to divide society। प्रकृति पर साधन तो उपलब्ध हैं, लेकिन सभी को बराबर के उपलब्ध नहीं है। क्यों? इट्स अ माइथोलॉजिकल व्यू, इट्स अ रिलीजियस ओपिनियन। प्रकृति ने सब कुछ दान किया है, लेकिन किसको कितना और क्या मिल सकता है, यह उसके कर्म और यह उसके भाग्य की बात है। इसलिए जो साधन उपलब्ध हैं, वो एक व्यक्ति विशेष या एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथों में कंसंट्रेट हैं, जिससे समाज में विघटन हुआ। विघटन मीन्स डिवाइडिंग द सोसाइटी, आइदर रिच और पुअर। प्रकृति पर कर्म तो सभी के पास है, लेकिन कोई अपने कर्मों से बहुत अमीर बन गया और कोई अपने कर्मों से गरीब ही रहा। ये यूज था। तीसरी चीज, इनडिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो साधन है, इस साधन की लालसा कि मैं भी कंपटीशन पर खड़ा हूं, हम इसका एक्सप्लॉइटेशन करते, दोहन करने लगे, और इस दोहन से कुछ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जो प्राकृतिक डिस्टरबेंस शुरू हुआ,
तो यहाँ से आर्थिक सामाजिक संकट पैदा हुआ। ये ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।